हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। दिस कैलकुलेटर इज़ बिल्ड इन HTML5, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. If we talk about the web application ingredients, so there are three: HTML, CSS and JavaScript. So HTML provides the skeleton of a website, CSS उस पर स्टाइलिंग लगाता है, एंड JavaScript से हम एक्शन परफॉर्म करते हैं कि बटन के क्लिक पे क्या एक्शन लेना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के दौरान हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे। So we will learn that the use of blog label and inline elements. गूगल फॉन्ट्स को प्रोजेक्ट में कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे वो सीखेंगे। HTML फॉर्म के साथ कैसे काम करना है वो सीखेंगे। CSS पे कैसे काम करते हैं, स्टाइलिंग कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। एंड एक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसे मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो वनीला जावास्क्रिप्ट बोले तो प्लेन जावास्क्रिप्ट, इसके साथ कैसे काम करेंगे, और jQuery लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करके DOM मैनिपुलेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे इसमें। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। द टेक्स्ट एडिटर कैन बी नोटपैड एंड टेक्स्ट एडिट. नोटपैड कम्स विद द विंडोज़ एंड टेक्स्ट एडिट कम्स विद लिनक्स और मैक. आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं विच यू प्रेफर्ड. Sublime Text 3 है, विजुअल स्टूडियो कोड है. सो लेट्स सी हाउ दिस फाइनल कैलकुलेटर लुक्स. जो कैलकुलेटर होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा. दिस कैलकुलेटर इज़ अ फॉर्म, HTML फॉर्म, जिसके 3 फील्ड्स हैं. ये लेबल्स हैं, ये फील्ड्स हैं, और ये सारे बटन्स हैं. जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें आप नंबर के अलावा कुछ भी नहीं डाल सकते. एंड वी कैन क्लिक द बटन्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन. इफ़ आई क्लिक दिस ऐड, सो इट विल ऐड दिस 2 numbers एंड डिस्प्ले इन द आउटपुट फील्ड. सब्ट्रैक्ट क्लिक करने पे ये दोनों नंबर को माइनस कर देगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर. ऑन क्लिक ऑफ मल्टीप्लाई, इट विल मल्टीप्लाई दिस 2 numbers. ऑन डिविजन, इट विल डिवाइड फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर. So this will be displayed in a floating number. When we click this clear button, so it will clear the form. So this is pretty basic, but it can be extended to a large project, जहाँ पे आप सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड रख सकते हो आउटपुट दिखाने के लिए, और नीचे आप 10-12 बटन ले सकते हो, जैसे कि हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में इनबिल्ड कैलकुलेटर होता है. लेट मी शो यू द कैलकुलेटर. So like this, so there is a text field and these are the buttons. So like this you can create this also in the HTML form. Okay, so let's start now. So we'll start with creating a folder. दोस्तों, we can create a folder in let's say I'm going to documents. I can create the folder manually. So HTML calculator. So we can create the folder like this, or we can create a folder from the terminal also. So let me go to the documents. So CD is the change directory. So I'm going to documents. Here I can create a new directory by following command mkdir. So it will create just sounds like make directory. So make directory. The folder name will be HTML calc. Let's say this is the name. So I can go again into this folder. To create the file, we can use this touch command to touch, and the file name, so index.html. For style, I can pick any name, but let's say style.css. And for JS, I am making this main.js file. So I have created 3 files in this folder. So if I go here, you can see that we have 3 files here. Of course it will be empty, there will be nothing in it. So I am using text editor. This is my Linux operating system. So we can start writing code here. So this is the doc type HTML. Within angle bracket, whatever you have written is called tag. So they are the HTML tag, and they are case insensitive. Means you can write like this and you can write this. They both are similar. So for now, let's go with the small. I have just changed this tab width to 2 and enable this automatic indentation. Inside this HTML, we have 2 main tags. One is head. So whenever you open the tag, you should close it. So this is the head, and another is body.
at some places it is there are three like head, body and footer. It just depend on you where do you want to write your footer. So some write in the inside the body. So हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हेड के अंदर होता है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है वो है टाइटल। टाइटल अभी हम देखेंगे ये कहाँ पे दिखता है। सो कैलकुलेटर ये SEO के लिए यूज़ होता है। SEO बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देयर आर जनरली दिस मेटा टैग विच कैन सेट UTF-8. So this provides the support for so the non-English characters can be readable by the browser. So ये उसका support ऐड करता है। We have to insert the style sheet. For style sheet we need to first tell the browser that this we are going to link this style sheet and we need to give the address of it. I mean कि कहाँ से इसे उठाना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो हम किसी लोकल फाइल का भी पाथ दे सकते हैं। एक्सटर्नल गूगल पे या जो वेबसाइट इंटरनेट पे उपलब्ध है स्टाइल शीट उसका भी पाथ दे सकते हैं जो CDN वगैरह पे होस्टेड होते हैं। CDN एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होस्टेड होती हैं। तो आपको डाउनलोड करके अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उनका लिंक दे सकते हो। अभी हम जैसे jQuery इंक्लूड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि कैसे करते हैं। यहाँ पे href के लिए मैंने यहाँ पे style.css इसका नाम दिया था, तो ये हम इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, और अभी के लिए बस इतना ही है। सो हेड का काम कंप्लीट है। बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में हमें सबसे पहले तो हमें H1 दिखाना है। हम अपनी वेबसाइट भी साइड में ओपन कर लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ओके, सो H1 इज़ डन। अब उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे एक पूरा फॉर्म दिख रहा है तो हमें एक फॉर्म बनाना होगा। तो HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें ऐसा लिखना होता है फॉर्म, फिर जिसको ओपन किया उसको क्लोज़ करेंगे। तो फॉर्म हमारा ओपन हुआ एंड क्लोज हुआ। फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे फॉर्म के लिए हमें 3 फील्ड्स दिख रहे हैं और 5 बटन्स हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। फर्स्ट लेवल इज़ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे होगा हमारा इनपुट टाइप। अगर हम टाइप देखें तो हम चाहते हैं कि सिर्फ नंबर आए, तो यहाँ पे हमें टाइप नंबर लिखना होता है। और यहाँ पे हम ID दे सकते हैं। ID मैं बताऊँगा क्यों हमें ये रखना होगा। फर्स्ट है यहाँ पे जब लेबल अपन लिखते हैं, पहले तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। बस ये ऐसे ही क्लोज़ होता है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। बेसिकली जो टैग होते हैं, दिस इज़ द टैग और ये इसका एंडिंग टैग है। ये बीच में हमने टेक्स्ट कंटेंट लिखा है और ये एक पूरा एक HTML एलिमेंट है। तो ऐसे काम होता है। तो यहाँ पे इनपुट के लिए अगर देखोगे तो इनपुट के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो इनपुट के लिए एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं इनको। ये किसी टेक्स्ट को किसी और कंटेनर को रैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। और ये सेल्फ इनको एम्प्टी एलिमेंट्स को एक और नाम है जिसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। मतलब इसको क्लोज़ करने के लिए दोबारा हमें /input लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बस क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें लेबल के अंदर फॉर एक एट्रीब्यूट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें देना होता है और इनपुट में हमें ये बताना होता है कि उसका नाम क्या है। एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे यूज़ होता है, ये ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं। ब्लाइंड लोग जब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो सुनते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सुनते कैसे हैं कि मोबाइल में रीडर होता है या लैपटॉप में रीडर होता है। एक्सेसिबिलिटी के थ्रू उनको आवाज़ आती है कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। तो वो कैसे चेक करता है कि जैसे फॉर अगर जहाँ पे नेम लिखा है आपने फर्स्ट, ये उसका लेबल ढूंढेगा, उस लेबल पे क्या लिखा हुआ है, उसका कंटेंट क्या है। तो जैसे यहाँ पे नेम फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे ये फॉर ढूंढेगा कि फॉर फर्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है और फॉर फर्स्ट के लिए करस्पॉन्डिंग कंटेंट क्या है, फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही वो इनपुट नंबर पे टाइप करेंगे, वो टैब दबाते रहेंगे
तो वो पहला बोलेगा कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। तो वो आवाज़ कहाँ से आती है? वो आवाज़ इस बेसिस पे आती है कि लेवल क्या है। तो नेम, एट्रीब्यूट एंड फॉर एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें यूज़ करना चाहिए। अगर वेबसाइट आप कोई भी बना रहे हैं तो हमें सबके लिए देख के चलना होता है, राइट। यहाँ पे हम ऐसे ही इसके लिए दूसरे फील्ड के लिए ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे भी हम इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर रहेगा, नेम इक्वल टू सेकेंड एंड आईडी विल ऑल्सो बी सेकेंड। फिर तीसरी लेबल के लिए सो यहाँ पे हम इसको फॉर रिजल्ट दे देते हैं, सॉरी वहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ था। लेट मेक इट सेम एज द एप्लीकेशन आई हैव शोन यू ऑन द क्रोम, ताकि स्टार्ट से आइडिया रहे कि हाँ हम यही बना रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर डालेंगे ताकि कोई और रिज़ल्ट ना एंटर हो पाए। यहाँ पे हम नेम में हम देंगे रिज़ल्ट। ये आप आईडी कुछ भी रख सकते हो, आईडी से उसका मतलब नहीं है, बस मैं दोनों को सेम रख रहा हूँ। आप आईडी डिफरेंट रख सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने नेम लिखा है वही फॉर्म में होना चाहिए, आईडी का उससे मतलब नहीं है कुछ। फिर हम 3 हमारे फील्ड बन चुके हैं, तो इनको एक बार हम सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। इसको चेक करने के लिए हमें फिर से जाना होगा यहाँ पे, और इसको हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ क्रोम करेंगे। तो देखिए ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो एक बार पहले सारे एलिमेंट बना लेते हैं, फिर स्टाइलिंग करेंगे। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड आउटपुट इज देयर। अब हमें 5 बटन बनाने हुए हैं, वो बनाते हैं। बटन, फर्स्ट बटन का नाम है ऐड, सेकेंड बटन का नाम है सब्ट्रैक्ट, लेट मी जस्ट सी, सो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके। दोस्तों ये HTML लिखना काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर हम कोई बड़ा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, लाइक सबलाइम या विजुअल स्टूडियो। वहाँ पे बॉयलर प्लेट होते हैं, स्टार्टिंग कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डिवाइड, एंड देयर विल बी अ बटन। अब इसका टाइप हमें बताना होगा कि टाइप इज रीसेट। सो ये इनबिल्ड बटन है, ये क्लियर कर देता है फॉर्म, ओके। तो आइए फॉर्म को सेव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे बटन और लगभग हमारा HTML का काम पूरा हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये ऐसा HTML दिख रहा है, इसको हमें यहाँ पे लाना है। ये हम कैसे करेंगे? थ्रू स्टाइलिंग करेंगे। तो यही मैं जैसे बता रहा था कि आपको कि HTML क्या होता है, एक पूरा स्केलेटन होता है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती है, बस एक पुतला है सपोज़ करिए। अब यहाँ पे जब स्टाइलिंग ऐड कर देंगे तो ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है दोस्तों कि पूरा फॉर्म जो है सेंटर में है। तो सेंटर में चीज़ को लाने के लिए हमें एक तो इसको किसी कंटेनर में रैप करना होगा। दोस्तों एक और चीज़ नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि लेबल, इनपुट एंड बटन्स ये सारे ही एक लाइन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये लाइन यहाँ से ही क्यों नहीं स्टार्ट हुई हेडिंग के बाद? इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एक ब्लॉक लेबल एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। सो ब्लॉक लेबल एलिमेंट जो होते हैं वो पूरा स्पेस लेते हैं। सो जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये H1 देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ब्लू सिग्नल आ रहा है आपको, ये क्या है? ये पूरा स्पेस ले रहा है। इस स्पेस में कोई और नहीं आ सकता। इसको हम बोलेंगे एक ब्लॉक लेबल एलिमेंट।
जैसे फॉर्म है, फॉर्म भी क्या है, ब्लॉक लेबल एलिमेंट है, पर लेबल एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर ये लेबल भी ब्लॉक लेबल एलिमेंट होता तो इनपुट को नीचे आना पड़ता। ओके, तो ये है। और अगर अगर आप ये देखो, मैंने जस्ट इसको किसी भी ब्लॉक को आप इनलाइन बना सकते हो, इनलाइन को ब्लॉक भी बना सकते हो। मतलब ये आप डिपेंड करेगा कि आप कब करना चाहते हो। हमारे केस में अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि मैंने इसको क्या किया है, एक ब्लॉक एलिमेंट बना दिया है। तो अब ये फर्स्ट नंबर जो है, ये देखिए ये पूरा स्पेस ले रहा है। ओके, तो ये चीज़ समझने वाली थी। तो बेसिकली अब मुझे अगर इसको पूरे को एक लाइन में लाना होगा तो मुझे इस दोनों को एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रैप करना पड़ेगा। फिर इनको भी रैप करना होगा, फिर इनको भी रैप करना होगा, और ऐसे ही बटन को भी रैप करना होगा। तो ये इतना अगर क्लियर हो गया तो आपको ब्लॉक लेबल और इनलाइन एलिमेंट का आइडिया लग गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम ब्लॉक लेबल एलिमेंट में कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों डिव जो होता है इट्स नॉट ए डिवीज़न, एक HTML का टैग है ये डिव, और ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हम अगर इसको हमने अगर यहाँ पे रैप कर दिया, ऐसे इसको भी करना होगा। वैसे HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हम मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो कई लोगों को में भी आइडिया ना हो कि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो भी हम कोड कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। बटन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो बटन कर रखा है वो 2-2 करके रखा हुआ था, 2 2 4 1 5। तो इसके लिए मतलब मेरे को 2 बटन को रैप करना होगा डिव के अंदर, इसके भी रैप करना होगा डिव के अंदर, इसको भी रैप करना होगा डिव के अंदर। तो ये मैंने रैप कर दिया, और ये लास्ट वाला बटन, ये हो गया रैप। इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों, ये ऐसा दिख रहा है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर अब सेम है, एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए 3 लेबल और इनपुट, लेबल इनपुट ऐसे आ रहे हैं एक लाइन में, ऐसे ही हमारा भी आ रहे हैं। 2 बटन एक लाइन में, 2 बटन एक लाइन में, तीसरा लास्ट वाला बटन एक लाइन में है, ये भी ऐसा है। फिर उसके ऊपर एक हेडिंग है, वो भी है। तो स्ट्रक्चर वाइज अब ये दोनों सिमिलर हो गए। बस हमें चेंज क्या करना है, अब इसका कलर, जो स्टाइल है वो अब हमें फिक्स करना है। तो दोस्तों स्टाइलिंग के लिए मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ कर रखा है, आप यहाँ पे गूगल भी कर सकते हैं, कलर जिला, ऐसे, और ये ओपन कर देगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है पेन के साइज़ का। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक कलर फ्रॉम पेज, तो ये किसी भी पेज से क्लिक कलर उठा लेगा। जैसे मैंने अब यहाँ का चेक करना, तो ये कौन सा कलर है, तो ये ब्लैक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे 0 0 आ रहे थे कलर के लिए, ऑल जीरोज मीन्स ब्लैक। यहाँ पे ऑल वाइट है, तो ऑल वाइट के लिए सारे कलर F होते हैं। यहाँ पे ये ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर है, तो ये सारे D हैं। कलर के लिए हम अलग से एक वीडियो कर सकते हैं अगर आपको डाउट लगे तो अभी हमें पता चल गया कि इसका कलर सारा D है। तो आइए अब हम स्टाइल लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पे style.css को ओपन कर रखा है, मैंने यही फाइल ओपन कर रखी है। अब इसमें हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम कलर चेंज करके देख लेते हैं कि कलर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। CSS लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे आप सेलेक्टर लिखोगे। सेलेक्टर कैन बी योर HTML टैग, HTML का कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, और कोई HTML एट्रीब्यूट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेम एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है, और ID हैं, क्लासेस हैं, उनके बेसिस पे आप CSS लिखते हो।
तो यहाँ पे आप वो एट्रीब्यूट लिखोगे या टैग लिखोगे, फिर करली ब्रेसेस लगाओगे, करली ब्रेसेस के अंदर जाके आप CSS के रूल लिखोगे। मैंने यहाँ पे इसको सेट कर रखा है टैब विथ 2 पे, इंडेंटेशन दोनों का सेम रहे इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आके बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, ऑल डी थे तो ये मैंने ऑल डी लिख दिया। अगर ये सारे सिमिलर हैं तो आप इनको रैप कर सकते हो, जैसे ये दोनों R होते हैं, ये दोनों G होते हैं और ये B होते हैं, RGB कलर वाइज देखते हैं अपन। तो अगर मैंने ये लिखा सिर्फ DD तो भी बात सेम है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। इसको सेव किया, सेव करके आए और यहाँ पे चेक किया कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, कलर इसका इसके कलर के सिमिलर हो गया। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ 3D लिखता तब भी ये सेम ही रहता। और कलर में भी यहाँ पे आप केस इनसेंसिटिव है, यहाँ पे आप कैपिटल D लिखते तो इससे कोई मतलब नहीं होता, तो भी ये चल जाता। ठीक है, अभी ये चल रहा है। इसके बाद हम गूगल फॉन्ट्स से पहले तो इसका फॉन्ट सही कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी स्टाइलिंग करेंगे। गूगल फॉन्ट्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं साइट में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जाना होगा fonts.google.com। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल फॉन्ट्स, तो वहाँ पे ही मिलेगा आपको। और मैंने इसके लिए जो फॉन्ट यूज़ कर रखा है वो है डांसिंग स्क्रिप्ट, ये रहा। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लिक करना होगा सेलेक्ट दिस स्टाइल, ये क्लिक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे इम्बेड पे, इम्बेड पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। ओके, सो अब ये देखो, ये भी एक CSS ही है /CSS2, ये लिंक है। तो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट कैसा है, स्टाइल सीट है। इसको आप यहाँ पे आके अपने HTML में कहाँ पे, बॉडी के अंदर नहीं, जिसकी भी हम फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हमें ये लिखना होगा। हम यहाँ पे ही डायरेक्टली लगा सकते हैं इसको। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर मोर देन 1 रूल होंगे तो हमें सबके आगे सबके पीछे एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। उसको हमने सेव किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा चेंज हो जाना चाहिए अब। सो ये हमारा इसके जैसा चेंज हो गया। अगर आप देखो तो दे बोथ आर सिमिलर, बस फॉन्ट साइज़ का डिफरेंस है, बट फॉन्ट इज़ सेम। ओके, अच्छा, बटन का अगर आप देखेंगे तो बटन भी हमारा इसी फॉन्ट में है, पर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो मैं बटन के लिए हमें अलग से एक रूल लिखना होगा, फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे मैंने फिर से वही फॉन्ट लगा दिया है। ये सारे बटन को टैग कर लेगा। इसको रीलोड करें तो ये बटन भी हमारे चेंज हो गए जैसे है। तो फॉन्ट सही हो गया, कलर हमारा बैकग्राउंड कलर सही हो गया। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, हेडिंग के और ये, और सबसे पहले इसको बीच में कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, बीच में लाने के लिए इनको हमें पूरे कंटेंट को रैप करना होगा किसी कंटेनर में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं जिसका क्लास रख लेते हैं कंटेनर। और यहाँ पे ये सबको उठा के पेस्ट कर लेते हैं। कट किया, इसको भी स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये कर दिया। इसका इंडेंटेशन थोड़ा सही नहीं है, इसको मैं थोड़ा, और एक टैब से आप भेज सकते हैं इसको, टैब के थ्रू एक साथ। तो टैब के थ्रू इधर कर लिया मैंने। एक टैब के थ्रू आप इसको आगे पीछे भेज सकते हो, सेलेक्ट करके कम्प्लीटली। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगर टैब में करूँगा तो ये उधर जाएगा, और सिर्फ टैब करूँगा तो ये पीछे आएगा। ये हमने रैप कर लिया है। रैप करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका स्टाइल लिखना होगा। जितनी भी चीज़ें हैं उनका मार्जिन और पैडिंग सबसे पहले 0 रखो, ताकि वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकें।
क्योंकि HTML खुद भी अपना पैडिंग और मार्जिन लगाता है किसी भी एलिमेंट पे, तो वो हट जाएगा। दूसरा, क्योंकि विथ में आपका पैडिंग प्लस बॉर्डर दोनों आते हैं, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि विथ सेम रहे, पर हम उसमें अगर हम पैडिंग लगाते हैं तो विथ माइनस में पैडिंग लगे। तो हमें बॉक्स साइजिंग करना होगा बॉर्डर बॉक्स। ये कॉमन CSS लिख रहा हूँ मैं, जो हर वेबसाइट में आपको मिलेगी ही। कंटेनर, अब जो कंटेनर हमने लिखा था वो एक क्लास था, तो क्लास के लिए हमें यहाँ पे डॉट लगाना होता है। और अगर हम किसी आईडी के लिए लिखते, अगर मान लो आईडी है समथिंग, तो हमें हैज़, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कंटेनर के लिए हमने बोला कि हमारा जो विथ होगा 50% होगा। ओके, तो विथ 50% होगा। फिर इसको देखते हैं कि ये अभी कैसा दिख रहा है, जस्ट टू चेक। ठीक है, तो अभी देख रहे थे पहले अपने आप ही यहाँ पे मार्जिन पैडिंग लग रहा था, अब कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए सबसे ऊपर जा रहे हैं। इसमें हमें गूगल अपना एक कंसोल देता है जहाँ से हम चीज़ें देख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है जब भी वेबसाइट अपन डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसने पूरे स्क्रीन का जो विथ है वो 100% है, और मैंने कंटेनर का जो विथ है 50% ले रखा है, इसलिए 50% आपको ब्लू दिख रहा है। पर ये मैं चाहता हूँ कि ये जो 50% ये बीच में आए, बेसिकली ये मिडिल में रहे। तो मिडिल में रहने के लिए क्या हुआ, मतलब कि हमने बोला कि मार्जिन जो है इधर से 25% हो और उधर से 25% हो, तभी ये बीच में आ सकते हैं। या मैं इसको ये बोलूँ मार्जिन ऑटो, तो ये बीच में आ जाएगा। अगर अब देखिए इसको, तो आप देख रहे हो, तो ये इसने क्या किया, लेफ़्ट से भी मार्जिन लगाया और राइट से भी मार्जिन लगाया, और इस कंटेंट को बीच में लाके अपने आप रख दिया। तो किसी भी अगर एलिमेंट को आपको सेंटर में रखना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। मार्जिन हमने रख दिया ऑटो, तो इसको सेव किया। अब ये गया यहाँ पे पूरा, ये बीच में नहीं है, कंटेंट बीच में नहीं है, लेकिन ये जो ब्लॉक है, डिव कंटेनर ब्लॉक है, वो है बीच में। ओके, वो उतना ही जगह ले रहा है जितना आपने बताया था 50% है। हेडिंग जो है ये ऊपर से थोड़ा इसके ऊपर मार्जिन लगा हुआ है, तो हमें भी अपना एक मार्जिन यहाँ पे लगाना होगा। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल कर देते हैं। तो अभी ये कैसे दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से ये इसने थोड़ा स्पेस ले लिया है। फॉर्म को बॉर्डर दे देते हैं, हेडिंग को बीच में लाते हैं। हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट अलाइन मेथड होता है। ये जितना भी विथ होगा इसके पास, उस विथ में ये सेंटर में पहुंच जाएगा। हेडिंग के नीचे भी हमें और ऊपर भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए था, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं मार्जिन 20 पिक्सल 0। 20 पिक्सल 0 का मतलब मार्जिन टॉप 20, मार्जिन बॉटम 20, और ये 0 का मतलब है कि मार्जिन राइट एंड लेफ़्ट आर 0। लेफ़्ट राइट में हम कुछ भी सेट नहीं कर रहे हैं, टॉप और बॉटम में हम 20 पिक्सल का मार्जिन देना चाहते हैं। ये मैंने अभी सेव नहीं किया था, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके फिर से रिलोड करते हैं, तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया है, और थोड़ा सा इसके पास डिफरेंस भी है मार्जिन का ऊपर नीचे। तो हमने ऐसा कर रखा है फॉर्म, और इसको बॉर्डर दे देते हैं लेट्स से 8 पिक्सल सॉलिड। कलर हमें पता करना होगा कलर कौन सा है, तो अगेन हम कलर जिला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेके गए प्लस आइकन, इसने हमें बता दिया ये कॉपी हो चुका है, ये खुद ही कॉपी कर देता है क्लिपबोर्ड पे। यहाँ पे हमने आके बस इसको पेस्ट करना है। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये काफ़ी हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी हमने यहाँ तक बना लिया है।
पहले तो डिव, जितने डिव हैं उनके ऊपर एक क्लासेस लगा लेते हैं HTML में चल के, ताकि हमें इनको स्टाइल करने में आसानी हो। फॉर्म ग्रुप ऐड कर दिया है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हर डिव पे चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर्म ग्रुप कैसा होगा। फॉर्म ग्रुप, अब इसमें भी हम पैडिंग, मार्जिन वगैरह जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं। एक बार हम अपना ओरिजिनल डिज़ाइन देखते हैं कि वहाँ पे कैसे किया है। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा है, इसके लेफ़्ट में, इसके राइट में। तो फिर हमें यहाँ भी विड्थ है वो लेट्स से 60% ले लो, एंड मार्जिन ऑटो। देखते हैं इससे क्या चेंज होता है। ओके, तो ये बीच में आ गया। ओके, अगेन इसको ऊपर और नीचे इनके बीच में स्पेसेस चाहिए। मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल बस। फिर देखते हैं ये अब कैसा दिखता है। सेम हम पहुंच रहे हैं, बस इसके पास ही हैं। अब यहाँ पे इनको देखो अगर आप, तो ये फील्ड यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं इस लेबल को अगर विड्थ दे देता कुछ और फिर इसको विड्थ दे देता इनपुट को, तो ये एक लाइन में आ सकते हैं। ओके, लाइक दिस, कि ये एक लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं और इनसे इसका मतलब नहीं है, लेबल से मतलब नहीं है। इसको करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा कि जो इनलाइन एलिमेंट है, जैसे लेबल एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये विड्थ नहीं लेगा, इस पर विड्थ अप्लाई नहीं होता है। ये क्या होगा, हमें यहाँ पे इसको डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक करना होगा कि इनलाइन भी रहे और ब्लॉक भी रहे, ताकि अगर मैं इसको विड्थ दूँ एक्सप्लिसिटली तो ये ले लें। इसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा लेबल को। तो लेबल को मैंने बोला कि डिस्प्ले विल बी इनलाइन ब्लॉक and width to be let's say 30%, और इनपुट को मैंने बोला इनका जो विड्थ होगा वो होगा लेट्स से 70%, और हर एक इनपुट में कुछ पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग होगा 10 पिक्सल। ओके, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। ओके, तो अभी ये सही दिख रहा है 28 पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप को पहले तो इसका विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ा, 70% विड्थ रखते हैं। आई थिंक, हाँ, आई थिंक 70% विड्थ इज़ करेक्ट। तो फॉर्म ग्रुप का विड्थ जो होगा 70% रख लेते हैं। और ये हमें रखना होगा शायद 28 था या 29 था। सेव करके एक बार चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है अभी। ओके, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है। ओके, काफ़ी क्लोज हैं हम लोग अब। थोड़ा इसका फ़ॉन्ट अगर मैं देखूं तो इन सब के फ़ॉन्ट थोड़े बड़े हैं, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। बॉडी में हम पहले ही बोल दें कि फ़ॉन्ट साइज़ सबका कितना होगा। लेट्स से 17 पिक्सल देखते हैं कि कितना करता है।
ओके, फ़ॉन्ट साइज़ तो बड़ा दिख रहा है इसमें, और इसमें कोई डिफरेंस अभी नहीं दिख रहा है मेरे को। फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे काफ़ी डिम है, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड है। तो लेबल में हमें क्या करना होगा, फ़ॉन्ट वेट होता है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं या 600 लिख सकते हैं। हम एक बार बोल्ड करके भी चेक कर लेंगे ये कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये अभी ऐसा दिखने लगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस एरो को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो जिस बटन पे हो। यहाँ पे अगर मैं बोल्ड करूँ तो भी सेम है। थोड़ा बटन को चेक कर लेते हैं एक बार कि बटन में क्या इशू है। पहले तो बटन देखिए यहाँ से इसके पास ही, फॉर्म के पास ही चिपका हुआ है, पूरा बहुत पास में है। यहाँ पे बटन के बीच में थोड़ी दूरी है, तो पहले इनको एक सेपरेट कंटेनर में ऐड कर लेते हैं बटन को। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, डिप क्लास बटन ग्रुप, तो और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं कट करके पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं और ये सबको सेलेक्ट करके फिर से टैब, तो ये इंडेंट हो जाएगा। तो बटन ग्रुप के अंदर ये आगे सारे। अब मैं इस बटन ग्रुप पे लगा सकता हूँ कि मार्जिन कितना रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मार्जिन जो होगा 50 पिक्सल रख लेते हैं, टॉप और बॉटम से हमारा इतना रहेगा, या 40 रखते हैं, 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, बटन ही स्टार्ट करते हैं। बटन हमने यहाँ पे कर लिया था, मेरे पास बटन, तो इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि पता रहे कि बटन का है, एक बटन का हर कोड एक जगह पे है। यहाँ पे मैंने आके बोल दिया कि विथ जो होगा पूरी 100% विथ होगा तो उसका 50-50 लेगा, ताकि दो बटन पूरे विथ लेके आ सकें। विथ 50% होगा। एंड बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ इनका ब्लैक। ब्लैक के लिए हम 000 लिख सकते हैं। कलर रख देते हैं वाइट, वाइट के लिए हम FFF रख सकते हैं, या वाइट भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे। और बटन के बीच में हम पैडिंग जो है वो हम दे देते हैं 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। सो 10 पिक्सल इज़ ऑल वी नीड right now. Let's see how does it look. ओके, अब बटन है तो इसका ये अगर मैं विथ थोड़ा सा कम कर दूं तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये खुद भी अपना कुछ स्पेस ले रहे होंगे, पैडिंग ले रहे होंगे इनसाइड, तो इस वजह से हमें ये पूरा विथ ना देके थोड़ा सा देना होगा। दोस्तों जो लास्ट बटन है अगर आप उसको चेक करोगे तो वो हाफ स्पेस ले रहा है, उसको मुझे पूरा स्पेस देना था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चल सके ये लास्ट बटन है। आप इसके लिए अलग से CSS का रूल आता है कि वो सेलेक्ट कर ले लास्ट बटन को। अभी देखिए ये मेरा कैलकुलेटर, बटन का भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बढ़ा दूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जबकि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अभी उतना बड़ा नहीं है। तो फ़ॉन्ट साइज़ बटन का लेट्स से 18 पिक्सल पे क्या होता है,
yeah, so 18 pixel, I think that is what being given here. ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, फिर देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ भी है, अगर आप देखोगे तो ये स्क्रॉल हो रहा है, तो कंटेंट अगर पूरा एक पेज में है तो स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आई थिंक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, ये सही भी है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि बटन क्लिक करने पे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ऐड करने पे कुछ नहीं हो रहा है। ओके, ये क्लियर हो रहे हैं सब। तो ये कैसे दूर करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें भी आ रही हैं, फर्स्ट सेकेंड रिजल्ट। तो ये एज अ HTML फॉर्म का जो फीचर है कि जब भी आप फॉर्म के बटन को क्लिक करोगे तो ये फॉर्म पोस्ट होता है। ओके, तो अगर आपने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो वो पोस्ट होगा, फॉर्म पोस्ट होगा। तो जबकि हमें ये कराना नहीं है, तो हम उस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो हमारा डिज़ाइन हो चुका है लगभग, अब हम जावास्क्रिप्ट को देख सकते हैं। तो ये HTML हो गया हमारा। मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको 3 डिज़ाइन दूंगा जावास्क्रिप्ट के। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक नेव अप्रोच कि हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बटन के लिए एक क्लिक हैंडलर लिखेंगे। बेसिकली क्लिक हैंडलर क्या होता है कि जब मैं ऐड बटन क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इसके लिए एक पूरा फंक्शन होगा। जब सब्ट्रैक्ट क्लिक करूँगा तो क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई क्लिक करूँगा तो क्या होगा। तो इन सब के लिए अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं आप। तो ये एक तरीके से नेव अप्रोच। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक करेंगे कि एक ही फंक्शन लिखें और ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाएं उसके अंदर। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो मतलब एक तो हमारा बेसिक अप्रोच है, फिर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, और फिर jQuery है कि jQuery के थ्रू कैसे करेंगे। दोस्तों जब इस बटन को कोई क्लिक करे तो इस बटन के क्लिक को सुनने के लिए इसके लिए हमें एक सेलेक्टर चाहिए। वो सेलेक्टर इसी बटन का होगा। वो हम कैसे एक्सेस करेंगे, वो हम इस बटन पे कोई एट्रीब्यूट डाल के एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये बटन है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ID इक्वल टू ऐड। यहाँ पे लेट्स से ID इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। सो ID इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। ID एक यूनिक एट्रीब्यूट है। तो आप 2 ID सेम नहीं रख सकते। बेसिकली ये 2 एलिमेंट के लिए सेम ID नहीं रख सकते हैं। लाइक ऐड के लिए भी ऐड रखा हो, सब्ट्रैक्ट के लिए भी ऐड रखा हो। ऐड का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक नाम है, कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने रखा ID इक्वल टू, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियर अपने आप ही क्लियर कर लेगा। तो ये हमारे सेलेक्टर हो गए। तो यहाँ से हम इनको कैसे एक्सेस करेंगे, थ्रू हम एक्सेस करेंगे DOM API। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, वो हमें एक्सेस देता है कि हम DOM के एलिमेंट को एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अच्छा, इसको एक बार कंसोल में डाल के चेक करते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये इस बटन का रेफरेंस देगा आपको। राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाके आप ये अगर टाइप किया आपने, तो अभी ये नल मिल रहा है क्योंकि मैंने इसको रीलोड नहीं किया था। तो यहाँ पे देखो तो आपको क्या मिला, इस बटन का रेफरेंस मिल गया। तो बेसिकली जैसे मुझे ये एलिमेंट पे जब क्लिक हो तो इस एलिमेंट का रेफरेंस होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सेलेक्टर ऐड किया है, एक एट्रीब्यूट ऐड किया है। अब इस सेलेक्टर के थ्रू हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और इस पर जो भी कोई क्लिक कर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें बस क्या करना होगा, एक ऐड इवेंट लिसनर होगा। ये कौन सा इवेंट लिसन करेगा, क्लिक। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट जैसे मैंने बताया अभी कि jQuery जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट देता है। यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि मतलब ये कौन सा इवेंट हुआ था, कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है।
उसका टारगेट क्या है, इसको भी मैं फाइल को टैब विथ 2 में डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे आके हमें सबसे पहला काम तो करना है कि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए ई लिख लेता हूँ ताकि कम लिखना पड़े। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। जब ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फॉर्म अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कैंसिल कर देगा। मतलब फॉर्म पोस्ट होता है वो कुछ नहीं करेगा, वो समझ में आएगा कि उसको मुझे कुछ नहीं करना है, कोई और JS लिख रहा है वो हैंडल करेगा कि मेरे ऊपर क्या परफॉर्म करना है। अब यहाँ से आप एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डालूँगा तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाए। जब ये वैल्यू मिल जाएंगे तो मैं इस बटन के क्लिक पे इन दोनों वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे रिज़ल्ट दिखा दूँगा। यही आइडिया है। तो हमें फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं। इसको भी एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से इसी तरीके का कुछ चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। बेसिकली अब हमें उस टेक्स्ट इनपुट को एक्सेस करना है। तो इस टेक्स्ट इनपुट का ID मैंने दे रखा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो मैंने ये दे रखा है फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट के थ्रू उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं अगर डॉट वैल्यू करूँगा तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा। जो ये वैल्यू देगा वो मेरे को एज अ स्ट्रिंग मिलेगा। नोटिस करने वाली बात है, यहाँ से मैंने सेकेंड वैल्यू निकाल ली। और यहाँ पे अगर मैं रिज़ल्ट में ये करूँ कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो दोनों स्ट्रिंग है तो ये दोनों स्ट्रिंग कैनकेटिनेट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा आउटपुट था वो रिज़ल्ट था ID। लेट मी चेक, इसका ID रिज़ल्ट ही है, सही है। और रिज़ल्ट के वैल्यू में मैं ये वैल्यू डालूँगा रिज़ल्ट। ओके, तो ये हमारा JS भी हो गया। JS हम जो ऐड करते हैं, हमें जैसे लिंक स्टाइल ऐड किया था वैसे ही JS की फ़ाइल ऐड करनी होगी। JS की फ़ाइल हम बॉडी में ऐड करना चाहिए लास्ट में, ताकि कोई भी सरप्राइजेस ना मिले। बेसिकली आप एलिमेंट एक्सेस करने जा रहे हो, अगर आपने ऊपर डाल दिया तो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ से स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू main.js, वो खुद ही समझ जाते हैं कि स्क्रिप्ट है तो ये स्क्रिप्ट का काम होगा। इसको रीलोड कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हम देखते हैं 10 20, और जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे 1020 प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो नंबर आते हैं ये एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। तो स्ट्रिंग आ रहा है तो इसको मुझे किस में पार्स करना होगा, इंटीजर में, राइट। इंटीजर में पार्स करने के लिए मेरे पास एक मेथड है पार्स इंट। तो मैंने पार्स इंट कर लिया फर्स्ट नंबर को, ऐसे ही पार्स इंट कर लिया सेकेंड नंबर को। अब मैं जो करूँगा इससे स्ट्रिंग ऐड हो जाएंगे, बेसिकली नंबर ऐड हो जाएंगे। तो अब मैं रीलोड कर लूँ इसको। 3 20, ये 30 प्रिंट कर रहा है विच इज़ क्लियर। अगर एक बार क्लियर करके देखें तो क्लियर भी काम कर रहा है। एडिशन का तो हो गया, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए करना होगा। आप कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके आप खुद इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। ये कॉपी पेस्ट ही काम है। यहाँ पे मैंने ये 4 बार पेस्ट कर दिया। ये जो मैं ऐड के लिए कर रहा था, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखूँगा। फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर सेम रहेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया माइनस। ऐसे ही यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लिखते हैं और डिवीज़न के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया डिवीज़न। तो ये हो गया कंप्लीट। एक बार हम इसको रीलोड करते हैं और चेक करते हैं। 10 और 20 ऐड करने पे 30 आएंगे, मल्टीप्लाई करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आएगा, -10 आएगा, मल्टीप्लाई पे 200, डिवीजन पे 0.5 एंड क्लियर से क्लियर। तो दोस्तों एक JS हमने देख लिया। ऑप्टिमाइज JS लिखते हैं एक।
तो फिर से फाइल लिखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है टच, और एक op.js लिख देता हूँ मैं, लिखेंगे ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे काफ़ी सही है एडिटर एक्चुअली, आप यहाँ पे सभी कोड को एक साथ देख सकते हो। इस कोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमें करना ये होगा कि हम सब पे एक क्लास लगाएंगे सारे बटन पे। और हम इस क्लास पे, एक क्लास पे पूरा बाइंड कर देंगे क्लिक। तो हमने क्लास बाइंड कर दिया, इसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करते हैं डॉट बटन। एक बार चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। दोस्तों ये एक्चुअली सारे एलिमेंट रिटर्न करेगा जो जिनके ऊपर ये क्लास लगा हुआ डॉट बटन। आप Ctrl+Shift+C से भी ये कंसोल ओपन कर सकते हो। तो देखिए इसने 4 बटन के रेफरेंस दे दिए। पहला बटन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेसिकली अब मैं जब क्लिक बाइंड करूँगा तो क्लिक जो बाइंड होगी वो ये सारे पे ब्लाइंड हो जाएंगे। बेसिकली मेरे को सबका रेफरेंस हो गया है, तो मैं इन पे लूप लगा सकता हूँ फॉर ईच। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से वो बटन एलिमेंट मिल जाएंगे। बटन एलिमेंट, ये भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मतलब यहाँ पे आप अपना नाम रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, बेसिकली बटन एलिमेंट मिल रहा है। अब इन बटन एलिमेंट पे आप अपना JS बाइंड कर सकते हैं। इसको भी मैं 2 विथ में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, बटन एलिमेंट। अब जैसे सेट कर रहे थे ऐड इवेंट लिसनर, वैसे ही करेंगे। तो मैं ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लिखने से जल्दी हो जाएगा। ये हमने कॉपी कर लिया। यहाँ से 2 डॉट लग गए हैं, इनको हटा देते हैं। बटन ऐड इवेंट लिसनर क्लिक पे बाइंड कर दिया मैंने, और मैंने ये बोला टैब लगाया, तो ये इंडेंट हो गया। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रखा है, बटन निकाल लिया। बेसिकली अब ये जो प्लस है वो प्लस नहीं करेंगे, अब हमें चेक करना होगा कि ये कौन सा बटन क्लिक हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम ये एक्शन निकाल लेते हैं कि एक्शन कैसा होगा। e.target.id, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा ID क्लिक हुआ है। बेसिकली जो ID की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर आप चाहें तो if else लगा सकते हैं या स्विच लगा सकते हैं। तो मैं एक बार स्विच लगा के चेक करता हूँ। स्विच पे होगा एक्शन, यहाँ पे केसेस लिख सकते हैं आप, ऐड। तो ऐड होगा तो आप क्या करेंगे, बेसिकली एक वेरिएबल रख लेते हैं यहाँ पे, और ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो पहले मैंने क्या किया, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया है। पहले तो सारे बटन एलिमेंट मिल गए मेरे को, और हर बटन के एलिमेंट पे मैंने क्लिक बाइंड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया ताकि वो फॉर्म पोस्ट ना हो, खुद से दोनों बटन की वैल्यूज़ निकाल ली। जो तीसरा जो रिज़ल्ट है उसमें क्या दिखाना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी ID पे क्लिक हुआ था। अब उस ID की वैल्यू क्या होगी, या तो ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसको इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं आप, लाइक ऐसे, इफ एक्शन इक्वल टू ऐड। यहाँ पे ट्रिपल लगाते हैं ताकि ये एग्जैक्टली मैच करता है। तो ऐसे एल्स इफ एक्शन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं। स्विच वाला भी आसान है, क्लियर है एक्चुअली वो थोड़ा सा।
फिर ऐसे ही मतलब आप सबके लिए कर सकते हो। यहाँ पे आप रिज़ल्ट की वैल्यू अपडेट कर देना, ऐसे भी कर सकते हो। मैं ये जब कर रहा था मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू पेस्ट वो कॉपी कर रखी थी। तो रिज़ल्ट के केस में रिज़ल्ट जो होगा वो इंटीजर को पास कर लेगा, सेकंड में इसको पास कर लेगा, उनकी वैल्यू अपडेट कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमें ब्रेक करना होगा। एक काम करते हैं, पार्सेंट बार बार ना करना पड़े इसलिए हम यहीं पे इसको पार्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट की जो वैल्यू होगी परसेंट फर्स्ट होगी, और सेकंड की जो वैल्यू आएगी ये भी पार्स इंट सेकेंड होगी। परसेंट सेकेंड परसेंट फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड की वैल्यू आ चुकी है अपडेटेड। तो यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं करना है, अब सीधे ही हम फर्स्ट प्लस सेकेंड कर सकते हैं। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने सब किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो माइनस करना। इसको यहाँ से टैप कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। यहाँ पे हम इसको डिवीजन कर देंगे। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट की वैल्यू आएगी वो रिज़ल्ट की वैल्यू आ जाएगी जो हमने रिज़ल्ट में पेस्ट कर दिया होगा। तो ये हमारा जेएस हो गया। अब ये काफ़ी ऑप्टिमाइज़ है। इसमें देखिए आपको बहुत सारे फंक्शन नहीं बनाने पड़े थे, हमने सिर्फ एक फंक्शन के अंदर ही ये पूरा काम कर लिया है। यहाँ पे अगर 50 ऑप्शन भी होंगे एक्शन, वो भी हम सारे यहीं पे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही मेन जेएस है तो मैं इसी को यहाँ पे ऑप्ट लिख देता हूँ, और इसके बाद हम कोड चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे हार्ड रीलोड करना होता है ताकि ये फिर से शुरू से ही सब कुछ स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, स्टाइल CSS आ रहा है। आप अगर कोड डिबग करना चाहो तो यहाँ से कोड डिबग भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके डिबगर लगा के, कि जब मैं बटन क्लिक करता हूँ तो मेरा ये डिबगर यहाँ पे आता है, ये डिबगर लग गया। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो इसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 20 और 27 से देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। प्लस काम कर रहा है, सब्ट्रैक्ट भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, और क्लियर तो काम कर ही रहा है। तो ये फिर से हमारा जो नेव अप्रोच है। और ये अच्छा, इसको नहीं चेक किया था हमने कि इस बटन के क्लिक पे कुछ हो रहा है क्या। देखिए कुछ नहीं हो रहा है, देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो e.prevent डिफ़ॉल्ट जो हमने कर रखा है वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रोक रहा है। अब ये फॉर्म पोस्ट नहीं हो रहा है कुछ, इसलिए यहाँ पे वो फर्स्ट सेकंड और रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा है। ओके, तो लास्ट जो चीज़ है वो देखते हैं हमारा jQuery से हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें jQuery के डाउनलोड करना होगा। jQuery का जो हमारा यहाँ पे आप गूगल करेंगे CDN jQuery, पहले लिंक को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, मिनीफाइड या कंप्रेस, कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ से मिनीफाइड उठाएंगे, अब क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि कोड इंटीग्रेट कैसे करना है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं क्लिक से। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। ये हमें कहाँ पे लगाना होगा वैसे, अब ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई स्क्रिप्ट आप लगाते हो ऊपर, तो पहले वो जब तक स्क्रिप्ट डाउनलोड नहीं होगी तब तक वो कोड नहीं आएगा। इसीलिए हमें सारी स्क्रिप्ट अपने बॉडी में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो jQuery है, jQuery जब डाउनलोड हो जाए उसके बाद ही मैं अपना JS चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना जो कस्टम JS लिखूँगा उसका नाम gq.js कर देता हूँ, या विथ jQuery लिख देता हूँ।
विद jq.js। जैसे ये पता चला कि विद jQuery के साथ है। इसको मैंने सेव किया। अभी यहाँ फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, हम यहाँ से कर सकते हैं अगेन टच Ctrl+B.js। ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो jQuery जो होता है वो हमें डॉलर साइन देता है, बेसिकली डॉलर इज़ अ jQuery हेयर। तो यहाँ पे हमें ये करना होता है डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए फिर अपना काम स्टार्ट करना है। ये बोलता है कि जब तुम्हारा पेज रेडी हो जाए, सारे एलिमेंट आ जाएं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, इसको स्ट्रिंग में भी लिख सकते हो। हमें बस क्लिक बाइंड करना है। क्लिक बाइंड करने के लिए हमें बस बटन का सेलेक्टर चाहिए, तो हमने डॉट बटन लगा रखा था। यहाँ पे हमें वैसा कुछ नहीं करना है कि फॉर लूप लगाना है फिर सब पे बाइंड करना है, ये ऑटोमेटिक jQuery कर देता है। तो ये ख़ास बात है jQuery की, ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आप देख लेना कोड दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से कोड कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरे को दोबारा लिखना ही पड़ेगा। तो ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है यहाँ पे, फिर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे jQuery से डॉलर। यहाँ पे हैज़ लगाना होता है अगर आईडी की वैल्यू आप उठा रहे हो तो हैज़, और ये वैल्यू नहीं होगा, ये ऐसे लिखेंगे अपन डॉलर फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड के लिए फिर हम करेंगे डॉलर हैज़ सेकेंड वैल्यू। यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड को हमने इंटीजर में पार्स कर लिया, आईडी निकाल ली, यहाँ से रिज़ल्ट सब कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आके हम बोलेंगे डॉलर हैज़ रिज़ल्ट, और वैल्यू में हम पास कर देंगे यहाँ पे रिज़ल्ट। दैट्स इट। बताइए कौन सा सिंपल है? इन दोनों में आपको कौन सा सिंपल लग रहा है? यहाँ पे आपको पहले आपने सेलेक्टर निकाले सारे, फिर उस पर फॉर लूप लगाया और फिर सब पे क्लिक इवेंट बाइंड किया, और यहाँ पे आपने एक ही लाइन में कर दिया डॉलर बटन ऑन क्लिक। ओके, तो ये jQuery की खासियत है, ये इसने काम आपका बहुत आधा कर दिया। ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो मतलब मस्ट है कि आपको आना चाहिए jQuery कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी jQuery सिलेक्ट कर रखा है, तो हम डायरेक्टली अपना कोड चेक कर सकते हैं। अभी एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ कि jQuery आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेटवर्क टैब में इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं और रीलोड करते हैं। तो देखिए jQuery डाउनलोड हुई है, इंडेक्स HTML गया, फिर स्टाइल लोड हुआ, इसी ऑर्डर में वो लोड होते हैं। HTML आया सबसे पहले पेज आपने मंगाया सर्वर से, फिर स्टाइल CSS आई क्योंकि स्टाइल CSS सबसे हेड में लिखी हुई थी, फिर उसके बाद JS आया क्योंकि बॉडी में था ये, फिर jQuery आपने लिखा था, उसके बाद JS विद jq.js लिखा था, फिर वो जो स्क्रिप्ट है डांसिंग स्क्रिप्ट वो बाद में आई, उसके बाद ये आपका फॉन्ट आया जो आपके इनबिल्ट फॉन्ट है। तो इस ऑर्डर में ये चल रहा है। यहाँ भी अपना कोड चेक कर लेते हैं 10 20 सही है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों वो जो मैं बता रहा था टाइटल में, तो ये देखो ये जो है ये टाइटल में आता है, जो हेड में आपने लिखा था टाइटल। तो ये SEO के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो जब गूगल रैंक करता है तो ये वेबसाइट करती क्या है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को काफ़ी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो कंसिडर दिस एग्जाम्पल, लाइक फर्स्ट नंबर इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, दिस 2 numbers आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन यू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एज अ रिज़ल्ट, कि यहाँ पे एक बटन होगा कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके। उसके बाद एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है तो यहाँ पे पावर का हो कि ये जो रिज़ल्ट आए फर्स्ट नंबर टू द पावर सेकंड नंबर, मतलब यहाँ पे 16 आए आउटपुट, ये कैसे करेंगे। तो ये
ऐसे चीज़ें और भी आप बटन ऐड करके और उनकी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट डिटेल में सीखना टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।